So whenever we are thinking of starting some new business, we think of many traditional areas. We always try to invest in those sectors which are very popular. But there are still many unexplored sectors which have better potential than any other sector. Supply chain management of medicinal plant sector is one of them, right? And to discuss more about it, that what are the business opportunities, we have Dr. Arun Chandar with us, who's the regional director of Regional Cum Facilitation Center, Northern Region for North India states of National Medicinal Plants Board. It is under Ministry Ayush, which is under Government of India, and Dr. Chandan is posted at Joginder Nagar in Himachal Pradesh at Research Institute in Systems of Medicines. So, Dr. Chandan is a medical specialist in Ayurvedic medicine and surgery, and he has spent his whole life in agriculture and Ayurvedic projects. So, Dr. Chandan has built a network of more than 6,000 stakeholders who are working in medicinal plant sector. So this is a big sector, and he has also created an entrepreneurial model. So what is that entrepreneurship model? Let us, understand that what are the business opportunities for us. So first of all, I would like to thank you and welcome Dr. Arun Chandan that you have taken out your time and you are here to give us, detailed information about this new sector and new business opportunities. जी नमस्ते आशीष जी, thank you very much for inviting me for such a novel cause in which we will be discussing about this upcoming medicinal plant sector having very good potential even globally. Okay, yeah, this is something new. Medicinal plants, we generally understand that medicinal plants are like herbs and all, but we don't know what is the opportunity. And as a traditional mindset जो लोगों के दिमाग में होता है that agriculture is something where people should not enter. It doesn't have that much scope in terms of generating revenue growth. In the past many years, the agriculture sector was not considered as a very profitable venture. So what's your take on this? What are your opinions? आशीष जी बहुत धन्यवाद। आज आपने एक बहुत अहम मुद्दे पे चर्चा छेड़ी है। ये बात सत्य है, आपने ठीक कहा। People are not much interested in agriculture, so they are shifting. Even the young people, the young boys in Himachal Pradesh, just doing graduation and all, they prefer to move to places like Baddi and all in search of job. कृषि क्योंकि एक मुनाफे का व्यवसाय नहीं रहा है, क्योंकि कृषि में हम लोग पारंपरिक तरीके से काम करते रहे हैं। हम लोग व्हीट और राइस और मेज, ये हमारी पारंपरिक फसलें रही हैं। जिन लोगों ने डाइवर्स किया है, जिन लोगों ने विविधीकरण कृषि में किया है, उन लोगों ने निश्चित रूप से सफलता पाई है। हिमाचल प्रदेश अपने आप में इसका एक उदाहरण है, जहां पे हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर के साथ, उद्यानिकी के साथ हमने काफी कुछ नया हम लोग कर पाए हैं। अगर आप सेब के इतिहास को भी देखते हैं, आज हम बात जो करेंगे वो असल में, जैसे आपने कहा कि मेडिसिनल प्लांट सेक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा कोविड के बाद, खास करके कोविड के दौरान, मेडिसिनल प्लांट्स के रॉ मटेरियल की जो डिमांड है वो दुनिया में बहुत बढ़ गई है। हम लोग जनरली ये देख रहे थे, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हमारे पास 2014 की एक स्टडी थी जिसमें एनुअल ग्रोथ हम मेडिसिनल प्लांट्स के रॉ मटेरियल की कमोडिटी की, ऑल्दो इट इज नाउ इट शुड बी अंडर द एग्रीकल्चर कमोडिटी, बट अभी तक केवल हिमाचल प्रदेश स्टेट ने ही इसको एग्रीकल्चर में लिया है। अदरवाइज अभी तक ये एग्रीकल्चर की कमोडिटी डिक्लेयर नहीं हुई है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अभी ये मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाता है मेडिसिनल को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब ये खेती होने लगा। इसका रीजन ये था कि लगभग 70 से 80% जो रॉ मटेरियल आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे इस पूरे देश के अंदर लगभग 10,000 के आसपास आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एवं होम्योपैथी जो मेडिसिन हैं उनको बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है।
ओके। अब उनका जो रॉ मटेरियल है वो जंगलों से आता था। 70 to 80% रॉ मटेरियल वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाइल्ड। तो जंगल से निकलने के कारण, क्योंकि एग्रीकल्चर का इसमें इंटरेस्ट नहीं था, खेती होती नहीं थी। लेकिन अगर मैं पिछले लगभग 2 दशकों के एफर्ट्स बताऊं सरकार के, खास करके नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के ही, बोर्ड क्योंकि 2000 में बना था, चिंता यही थी कि रॉ मटेरियल का प्रेशर जंगलों पे कैसे कम हो। लगभग 55 प्रजातियां हैं, 55 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको खेती में अब लाया गया है। धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी के अंदर घोषित हो रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। ओके, इनका तो मंडियों में मतलब व्यापार। टोटल 55 मेडिसिनल प्लांट्स है, या मैं नहीं 55 हर्ब्स है जिन्हें मेडिसिनल प्लांट्स की कैटेगरी में रखा है? नहीं नहीं, अगर मैं आपको देखिए, जैसे मैं अगर अगर हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, जैसे मैं आयुष की बात अगर करता हूँ, आयुष सिस्टम्स एज ए होल, 2014 में जैसे मिनिस्ट्री बनी, आयुष, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, एस वाई स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ये हमारे 5 इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। Now, very recently, 6th system has been now included, that is Swarigpa. The system which is being practiced by Tibetan people. So that is known as Bhot system in Lahaul Spiti area, and Amchi system in Ladakh. तो अगर मैं इन सारे कोडिफाइड सिस्टम्स की बात करता हूं एज ए होल, तो हमारे 2400 तरह के मेडिसिनल प्लांट्स उपयोग होते हैं इन कोडिफाइड सिस्टम्स के अंदर। आयुर्वेदा में लगभग 800 के करीब प्लांट्स यूज होते हैं, 250 के आसपास मेडिसिनल प्लांट्स स्वरिग्पा में उपयोग होते हैं, जो ये टिबेटियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। होम्योपैथी में लगभग 450 के करीब प्लांट्स हैं। इसी तरह से सिद्धा में करीब 1100 के करीब प्लांट्स हैं। तो कुल मिलाकर के 2400 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो इस समय में उपयोग होते हैं। और अगर मैं हिमालय की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, तो हमारे यहाँ जो ट्रेड है वो लगभग 150 ऐसे हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कहीं नहीं पाए जाते, जो हमारा एक स्पेसिफिक निश है उन पौधों के लिए, वो हमारे हिमालयन स्टेट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि प्रीशियस हैं, हाई वैल्यू हैं। आप उनको दिव्य औषधीय पौधे भी आप उनको कह सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल में मतलब इतनी वैल्यू वाले प्लांट्स हैं और हिमाचल की धरोहर है। बिल्कुल, ये हमारे जलवायु की विविधता है। आप देखेंगे ना, हिमाचल है, उत्तराखंड, ये तो एक मिनी ग्लोब है। हमारे यहाँ 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। हमारे यहाँ गर्म क्षेत्र भी है तो बर्फ भी गिरती है, अगर कोल्ड डेजर्ट भी है तो हमारे पास एल्पाइन हिमालयस भी है। तो इन चारों एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की जो प्रजातियों की विविधता है वो अपने आप में हमें एक इस जैव विविधता में समृद्ध करती है। तो आउट ऑफ these 2400 plants, now 55 are being considered as part of agriculture sector. Not exactly, Okay. not exactly, but मेरा कहने का मतलब ये था कि हम यानी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने 140 पौधों को पहले पहचाना है जिन पे काम करने की सख्त जरूरत है, जिन पे, क्योंकि क्या है ना कि जितने भी जंगल से जो औषधीय पौधे निकलते हैं उन पौधों की एग्रो टेक्निक्स के चैलेंजेस हैं। क्योंकि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने काफी शोध शुरू में किया और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने अलग अलग संस्थानों के साथ मिल करके इनके संरक्षण पे और इनके प्रोपेगेशन पे काम किया। तो जो चैलेंजेस हैं इस सेक्टर के अंदर, अब 2400 पौधों में से लगभग 100 के आसपास पौधे ऐसे हैं, जैसे 55 पौधे हिमाचल में से ही रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड की सूची में आ गए हैं IUCN की, या रेड डेटा बुक में शामिल हो गए हैं ओवर एक्सप्लॉइट होने के कारण, अनसाइंटिफिक यानी अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट होने के कारण। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने फिलहाल के लिए 140 पौधों को चुना है जो कि उद्योग के मतलब के हैं, जो किसानों को अच्छी आमदन दे सकते हैं और जिनकी एग्रो टेक्निक्स, जिनको उगाने के तरीके विकसित किए जा चुके हैं। तो उन पौधों पे मुख्य रूप से काम चल रहा है। और मेरा 55 पौधे कहने का आशय यही था कि लगभग 55 पौधे इस समय कृषि में आ चुके हैं, एक्चुअली उनकी खेती होनी शुरू हो चुकी है। जैसे अश्वगंधा, कालमेघ वगैरह है, अपना इसुगोल है, ये पौधे बड़े स्तर पे काफी मात्रा में इनकी खेती हमारे देश के अंदर शुरू हो गई। हालांकि 15 से ज्यादा जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनको हम अभी भी विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं, चाहे वो आपका गूगल है या मुलठी है। मुलठी देखिए अभी भी हमारी
विदेश से आती है, विदेशों से आती है, और हमारे आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, चाहे वो कोविड के इम्यूनिटी फॉर्मुलेशंस की बात करें या दूसरों की बात करें। तो मुलट्ठी हमारे भारत में नहीं प्रोड्यूस होती, बहुत कम मात्रा बहुत में कम प्रयोग चल है। रहे हैं, कमर्शियल स्केल पे तो अभी ये नहीं हो मुलट्ठी, पा क्योंकि मैं इसलिए आपसे मुलट्ठी की बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर गले की प्रॉब्लम के लिए मुलट्ठी लोग सुजेस्ट करते हैं। कौन से जी। देश में ये ज्यादा पाई देखिए, जाती है? हमारे पास ये इस समय अफगानिस्तान से आती है, अच्छा। और रशिया के आसपास के जो देश हैं, अपना जॉर्जिया वगैरह, छोटे हम्म। छोटे जो ये हैं, उन इनमें ये मुलट्ठी ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है, प्राकृतिक तौर से भी होती है, वहीं से ये सारे देशों में आती है। अफगानिस्तान की मुलट्ठी को हमारे यहाँ अच्छा समझा जाता है, वो आप ज्यादातर बाजार में आपको मिलेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आफ्टर कोविड द लाइफस्टाइल इज चेंज। बहुत से लोग जो है अब ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को यूज करना चाह रहे हैं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाते हैं। उन्हें अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो है वो नेचुरली बूस्ट होनी चाहिए, rather than taking some artificial medicines और chemical kind of thing। तो लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप अब शायद आगे निकल के आ रहा है। तो थोड़ा आप बताएं कि क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, मैं अगर अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो दो चीजें मैं यहाँ मुख्य रूप से साइड करना चाहता हूँ। एक तो ये कि 2017-18 में FSSAI, जो हमारी फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने जी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया भारत सरकार ने। वो ये था कि हमारे लगभग 436 जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में शामिल कर। ओके। इससे पहले क्या होता था कि आपको कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स का प्रोसेसिंग करना है तो आपको उसके लिए आपको आयुष का लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन इस नियम के सरल होने के कारण जब ये औषधीय पौधे फूड में चले गए, उसके बाद क्या हो गया कि इनका निर्माण प्रक्रिया सरल हो गई, और दूसरा, इनकी विश्व में मांग जो थी उसकी आपूर्ति के लिए हमारा रास्ता खुल गया। इसके साथ साथ एक और अमेंडमेंट उसी वर्ष में हुई, वो न्यूट्रास्यूटिकल में थी, कि आप औषधीय पौधों के एक्सट्रैक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को मिनरल्स के साथ में या दूसरी रासायनिक दवाइयों के साथ में मिला करके, जो सुरक्षित हैं, आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मान लीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ आप अश्वगंधा मिला देते हैं। यानी ये दो कैटेगरीज ने हमें हमारा दरवाजा विश्व के पटल पे खोल दिया। हम छोटे स्तर से जो हमारी चर्चा का मुख्य रूप से आधार है, वो हम अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये कहना चाहते हैं कि ये औषधीय पौधों का ऐसा क्षेत्र है कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के मॉडल पे काम कर सकते हैं। हम अपनी खाली जमीन पे उगा सकते हैं इन जड़ी बूटियों को। उगाने के बाद में हम इनकी प्राइमरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हम इनकी वैल्यूडेशन कर सकते हैं। वैल्यूडेशन के बाद इनको हम विश्व के सामने व्यापार के लिए, विपणन के लिए रख सकते हैं। अब इसके बाद में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले महीने एक और नया घोषणा कर, वो खास करके उसके पीछे कारण क्या था कि जो कोविड के समय में, अब देखिए हमारे यहाँ डेथ्स कम हुई, हमारे दादी नानी के नुस्खे सारे के सारे जिंदा हो गए फिर से, जी जी जी। है ना। जितने भी हमारे पुराने अनाज थे, जितने भी हमारे इम्यूनिटी बनाने वाले, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जितनी फॉर्मुलेशंस थी, काढ़े थे हमारे, सब जिंदा हो गए। तुलसी दोबारा शुरू हो गया है। तुलसी, जो घर घर तुलसी हुआ करती थी, वो अब फिर से घर घर पहुंच गई। लोगों ने बड़े स्तर पे उसका उपयोग कर दिया। काली मिर्च का उपयोग जो है वो बड़े स्तर पे हो गया। तो ये जो जितनी सारी प्रक्रियाएं हुई हैं, इन प्रक्रियाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता का जो आहार है, जो हमारा खान पान है प्रतिदिन का, एक तो देखिए ना, सुंदरता हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, हमारी जलवायु की विविधता है, उसके बाद में प्रजातियों की विविधता है। उस प्रजातियों की विविधता के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारा हर एक समाज का खान पान स्थानीय संसाधनों पे बहुत निर्भर करता था। कभी हम कचनार के फूल की सब्जी खा लेते हैं, कभी उसका अचार बनाते हैं, कभी हम लिसोड़ा खा रहे हैं। यानी इतनी सारी चीजें, ये वैज्ञानिक हैं, इनके क्लासिकल रेफरेंसेस भी हैं, आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में इनका बहुत अच्छे से वर्णन भी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक नई कैटेगरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम आयुर्वेदिक आहार बनाएंगे। यानी जितने हमारे फूड के मैन्युफैक्चरर हैं, उनको एक और अपॉर्चुनिटी दे दी कि ऐसे आहार जिनको पथ्य के रूप में
आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित किया गया है, या वो जनमानस के हमारे संस्कृति का जो हिस्सा है, अगर हम उन आहार की चीजों को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे तो हम उनको ग्लोबली मार्केट कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया एक बात के लिए फूड तो सप्लीमेंट कह सकते हैं। फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी मैंने आपको पहले कही, ओके, ये सिर्फ आहार है। ये आहार लेट होंगी। लेट 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 फूड बी योर मेडिसिन, यानी ओके। आप आहार से ही अपनी इन चीजों को ठीक करें। तो वो आहार की एक नई कैटेगरी आने से मैं तो इतना रोमांचित हूं इस घोषणा के बाद और इस कैटेगरी को देखने के बाद में, कि हमारे जितने भी स्थानीय स्तर पे, देखिए हमने 2500 पौधों की बात करी है, लेकिन यहाँ तो लाखों की संख्या में है। हमारे पास इतनी सारी विविधता है, जैव विविधता इतनी ज्यादा है, बायो रिसोर्सेज इतनी बड़ी मात्रा में है कि हमारे जीवन तो कम हो जाएंगे इन सब कामों के लिए, उनको हम पता ही नहीं कर पाएंगे। अब उस विविधता से व्यापार कितना निकल के आता है, ये अंदाजा लगाने वाली बात है। और हमारे भारतीयों के दिमाग, हमारे भारतीयों की सोच और उद्यमिता, क्रिएटिविटी जबरदस्त है। ऐसे फूड से रिलेटेड स्टार्टअप्स आने शुरू हो गए हैं। मिनिस्ट्री आयुष जो है, आयुष मंत्रालय विशेष रूप से इस तरह के प्रयासों को सपोर्ट कर रहा है। आने वाले समय में इस तरह की चीजों का काफी बड़ा एक संभावना निकल रही है। एक चीज जो आपने शुरू में कही, जो इम्यूनिटी की बात करी आपने, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद एक इट्स ए कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का विज्ञान है, आयु का। जैसे दो चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ। सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी एलोपैथ के चिकित्सक को ये पूछेंगे कि भाई स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, व्हाट इज हेल्थ, वो ये कहेंगे कि हेल्थ इज ए स्टेट वेयर देयर इज नो डिजीज, यानी एब्सेंस ऑफ ए डिजीज फ्रॉम योर बॉडी इज हेल्थ बेसिकली। 1960s तक ये बात कही जाती थी, ये बात मानी जाती थी, लेकिन 60s के बाद में इट वॉज द आयुर्वेदा जिसकी इन्फ्लुएंस से विश्व स्वास्थ्य संगठन को हेल्थ का डेफिनेशन बदलना पड़ा। हमारे यहाँ हेल्थ क्या बोला जाता है, एक सूत्र से मैं बताता हूं, समदोषा समान अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि। अब जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसको तो उसने समदोष, समग्नि, सम धातु, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक बोल दिया, लेकिन उसने दूसरी लाइन में ये कहा प्रसन्न आत्मा, इंद्रियां और मन। वो समय था जब आयुर्वेद ने इस दुनिया को, ये आपका सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ का डेफिनेशन। अब आगे बात आती है जो हम होलिस्टिक हेल्थ की बात हो गई ना जी, ये होलिस्टिक हेल्थ की बात करी। और अब आती है बात रसायन की, अब आप इम्यूनिटी की बात आती है। अब इम्यूनिटी क्या है, बेसिकली रोग प्रतिरोध शक्ति क्या है। हमारे यहाँ पे कभी विस्तृत रूप से बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि जो आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है रसायन की। अब रसायना इज व्हाट? रसायना इज बेसिकली द साइंस ऑफ रिजुविनेशन। आयुर्वेदा बिलीव्स कि ये जो एजिंग है, इट कैन बी डिलेड, इट कैन बी रिवर्स्ड। अगर आप च्यवन ऋषि की कहानी सुने तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वृद्ध को दोबारा से युवा किया जाता है। तो अगर मैं उन रसायन औषधियों की बात करूं, जितनी रसायन औषधियां हमने, लगभग हिमालय के क्षेत्र में करीब करीब 75 ऐसी औषधियों की, मेडिसिनल प्लांट्स की लिस्ट बनाई है जो रसायन की कैटेगरी में आती है, जिनका उपयोग करके, चाहे वो फूड के तौर पे, डाइट के तौर पे, आप अपने इम्यूनिटी को, आप अपने इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोध शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। और अगर ये रिवर्स हो जाता है, पॉसिबिलिटी है, तो इस पे कहीं ना कहीं और रिसर्च की जरूरत है, या शायद आगे पुराने ग्रंथ या गुम हो चुके हैं, या वो औषधियां नहीं मिल पाती, जो ये चीजें नहीं हो पाती। इसका क्या कारण है? नहीं, शोध की कमी नहीं है। अगर मैं पिछले 1 दशक की बात करूं तो बहुत अच्छा रिसर्च इस दिशा में चल रहा है। ग्रंथ भी लुप्त नहीं है, ग्रंथ भी हमारे सरकारी स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पे इनका संरक्षण भी हुआ है। व्यवहारिक रूप से शोध भी चल रहे हैं। एजिंग के डिले करने के प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट, जेरिएट्रिक केयर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा काम इस देश के अंदर हो रहा है। और लेकिन वही है कि अभी ये जो ज्ञान है बहुत कम समय एक जगह पे सीमित है, इतना ज्यादा स्तर पे इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। अभी हो रहा है धीरे धीरे, आयुष मंत्रालय की तरफ से ये सारी चीजें, अगर आप हमारे वेबसाइट को देखें
हमारे फेसबुक पेज को देखें आयुष मंत्रालय के, तो इस तरह की चीजों को समय समय पे जो है जनता के सामने ले जाया जा रहा है। अब जैसे योग आप देख रहे हैं, योग तो आयुर्वेद का अभिन्न अंग है। अब योग में हम लोग बिल्कुल विश्व गुरु हो गए। अब इस बार तो योग देखिए कहाँ कहाँ पहुंच गया। अब योग के साथ साथ आयुर्वेद भी, तो आयुर्वेद भी जो है वो पूरे तरह से विश्व में अच्छे तरीके से फैल रहा है। और उसका मैं आपको एक और उदाहरण ये देना चाहूंगा कि अगर मैं औषधीय पौधों की बात करूं, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूं, तो जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम ये अनुभव कर रहे थे कि लगभग 7% की दर से एनुअल ग्रोथ इस सेक्टर में हो रहा है। और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद ये 2050 तक विश्व की बड़ी इकोनॉमी बन जाए। हालांकि विश्व में मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में भारत का योगदान बहुत कम है, 10% से भी कम है चाइना की तुलना में। लेकिन जो कोविड में हुआ, कोविड में ये ग्रोथ, अगर मैं एक आपको सिर्फ फिगर बताता हूं तो लगभग $18 बिलियन का बिजनेस 2020 तक हुआ था। 20 के बाद का डाटा अभी आना है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये 7% से लगभग ये 20 से 30%, और कुछ कॉमोडिटीज के अंदर ये लगभग 50% को भी बढ़ चुका है। तो इसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि उसमें क्या आपने एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल डेवलप किया है? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसके जो सप्लाई चेन के गैप्स है, जैसे मैंने कहा शुरू में, तो ये वाइल्ड कलेक्शन, यानी हम लोग फॉरेस्ट से कलेक्शन होती है। फॉरेस्ट से कलेक्शन के लिए लोगों के बर्तनदारी है, वहाँ लेजिटिमेट राइट्स है, वो परमिशन से सस्टेनेबल तरीके से उनको हार्नेस करना चाहिए फ्रॉम द फॉरेस्ट, इट इज बिलीव्ड। बट उसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के साथ मिलकर के जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो दूसरी संभावना का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है कल्टीवेशन। जैसे मैंने कहा कि 100 से ज्यादा जो हैं वो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो जिनकी हमारे पास एग्रो टेक्निक्स डेवलप हो गई। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपनी इस एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि जी, ये बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेजेंटेशन लेके आए हैं तो मतलब एक बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। देखिए, मेरा जो समझ है कि अब ये जो ताले के जो सब गरारियां हैं ना, ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स है इसके, इनको जोड़ने के बाद ही ये सेक्टर जो है फ्लोरिश कर सकता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आप ये जो सेंट्रल लाइन देख रहे हो, ये हमारा पूरे का पूरा एक मेडिसिनल प्लांट सेक्टर है। बिल्कुल। अब जो अपर साइड में मैं आपसे डिस्कशन करने लगा हूँ, ये वाइल्ड कलेक्शन जो मेडिसिनल प्लांट्स की होती है, उनमें सबसे पहले तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एक मेजर इशू है। देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ क्या है कि साइंस में, खास करके बॉटनी, केमिस्ट्री में, इवन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग साइंटिस्ट हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं, फॉरेस्ट्री के लोग हैं। बहुत सारे सब यूथ जो हैं जनरली सरकारी सेवा में, नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर मैं वाइल्ड कलेक्शंस की बात करूं और आपको मैं अगर एक फिगर कोट करूं, ये कहीं पब्लिश नहीं है, एक तरह से अनऑफिशियल कोड है कि लगभग 100 करोड़ का मेडिसिनल प्लांट्स का ट्रेड हिमाचल प्रदेश में ही अकेले होता है। लीगल रिपोर्टेड ट्रेड जो है वो करीब 10 करोड़ का है। तो अब इसको रेगुलेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहला काम है कि क्या ये सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग वैज्ञानिक तरीके से सोची जा सकती है, क्या स्पीशीज को समय से निकाल सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए, कि वो इसमें से बिजनेस की संभावनाओं को ढूंढ सकते हैं। मिनिस्ट्री ने गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस के प्रोटोकॉल्स बना दिए। वो प्रोटोकॉल्स जो है वो स्पीशीज के हिसाब से मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के यंग लोग, एंटरप्राइजिंग लोग जो है वो उनका ट्रेनिंग लेकर के दे कैन बिकम मास्टर ट्रेनर्स, दे कैन फर्दर टेक कंसल्टेंसीज, दे कैन टेक फर्दर वर्क फॉर दैट। उसी तरह से सर्टिफिकेशन का एक शीशी बहुत बड़ा क्षेत्र है कि अब जब जो भी स्पीशीज, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स, जो भी कमोडिटी, चाहे वो पल्सेस हैं, चाहे वो अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, जो भी वो निकाल के आते हैं, अब एवरीबॉडी इज बिहाइंड सर्टिफिकेशन। वो चाहते हैं कि ये नेचुरली ग्रोन है, वाइल्ड हार्वेस्टेड है, ऑर्गेनिक है,
केमिकल फ्री है या जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यहाँ सामने है, तो जिसको ये हम सर्टिफिकेशन कौन सी बॉडी देगी? सर्टिफिकेशन में अभी तक हमारी एनपीओपी जो हमारी भारत सरकार की ऑर्गेनिक इसका फार्मिंग सर्टिफिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है, दूसरा एपेडा जो है, एपेडा भी इसकी सर्टिफिकेशन के लिए एम्पैनलमेंट करता है। और हमारा एक सेंट्रल बोर्ड है जो एक्रीडेशन बॉडीज का है। यूथ जो है वो सोच सकते हैं कि वो अपनी एक्रीडेशन बॉडी बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर किसी एक्रीडेशन वाली बॉडी से लगभग 32 एक्रीडेशन वाली कंपनीज को एपेडा ने अपने साथ लिस्ट किया है, और उसी को मिनिस्ट्री भी एक्नॉलेज करती है, रिकॉग्नाइज करती है। ऑन द अदर साइड मिनिस्ट्री ने अपने आप एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम जीएफसीपी और जीएपी, जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं फॉर मेडिसिनल प्लांट सेक्टर, वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च की हुई है। वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में खूब सारी डिटेल वो हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं, अलग से भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कोई भी, जैसे मैंने कहा कि विदेशों में भी डिमांड आ रही है, अब विदेश से या देश से भी हमारे पास इतनी सारी डिमांड है, लगभग 1 लाख मीट्रिक टन का, लगभग 14-15 मेडिसिनल हर्ब्स का जो डिमांड हमारे पास इस समय हमारी जो नेशनल हेल्पलाइन है उस पर आई हुई है। अब उसको लेने के लिए लोग ट्रेसिबिलिटी वो वो देखना चाहते हैं, कौन सी रेस है, कहाँ से आई है, किस खेत से कल्टीवेट हुई है। ये सब के लिए ट्रेसेबिलिटी स्टैब्लिश करना टेक्निकल तरीके से इस क्षेत्र में भी हम स्टार्टअप्स कर सकते हैं कि हम AIoT का उपयोग करके, हम सैटेलाइट का उपयोग करके, हम स्मार्ट फार्मिंग सिखा करके हम ट्रेसेबिलिटी पे भी काम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा आपको कि हमने न्यूगो प्रोटोकॉल के तहत हमने, जो हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट है 2002, उसके तहत हमने कहा है कि हम जंगलों से जो वाइल्ड हार्वेस्टिंग है वो हम बंद करेंगे। तो उस वाइल्ड हार्वेस्टिंग को रोकने के लिए अभी एक जो कंपोनेंट नया शुरू हुआ है पहाड़ों में भी और हर स्टेट के अंदर है, वो है एक की जो कलेक्शन है वाइल्ड स्पीशीज की, वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज के थ्रू की जाए। हर पंचायत के अंदर एक एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कोई भी वाइल्ड रिसोर्स, बायो रिसोर्स है, उसका एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग कम्युनिटीज को मिलना चाहिए। अब वो जो भी पंचायत बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बना रही है, चला रही है, कोई भी कमोडिटी कहीं से निकलती है, किसी तरह का रॉ मटेरियल निकलता है, उसका रॉयल्टी जो है उस पंचायत को जाना चाहिए। तो सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि जो भी यूजर हैं बायो रिसोर्सेज के, दे शुड गिव एक्सेस बेनिफिट टू द पीपल इन द विलेजेस इटसेल्फ। तो ये तो थे कुछ इश्यूज जो वाइल्ड कलेक्शन से रिलेटेड है। अगर मैं कल्टीवेशन की तरफ जाता हूं नीचे, तो कल्टीवेशन में सबसे पहला मैं मेंशन कर रहा हूं ACP का, दूसरा जो सर्टिफिकेशन है, तीसरा गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का है। जो मैंने नंबर 1 पे ACP कहा, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है अभी तक? वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि कोई भी खेती है, मान लीजिए अश्वगंधा है, अब अश्वगंधा का वो छोटा सा एक ट्रायल फार्म लगाते हैं अपने रिसर्च स्टेशन पे, उसके बाद वो उसकी इकोनॉमिक्स निकाल देते हैं। वो जनरली क्या होते हैं, किसान के फार्म पे वो रियलिटी नहीं आती है उसकी, किसान को परेशानी होती है, सॉइल कंडीशंस अलग अलग है उसकी। तो उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि हर एक क्रॉप का एक एश्योर्ड क्रॉप प्राइस होना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए हम इस विषय पे भी काम करें, और जितने भी एग्रोनॉमी के लोग हैं, एग्रोनॉमी में जो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं इस तरह के, स्काई इज द लिमिट, हम इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, इसमें भी सर्टिफिकेशन के इश्यूज हैं। तीसरे, इसमें गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। चौथा, यहाँ पर 2 चैलेंजेस हैं जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एजुकेटेड यूथ के लिए, जो एग्रोनॉमी से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से हैं। हम इसमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की बात कर सकते हैं, वैरायटीज की बात कर सकते हैं। यानी कल्टीवार्स मेडिसिनल प्लांट सेक्टर के बहुत सारे डेवलप हुए हैं, लेकिन वो अभी तक किसान तक नहीं पहुंचे हैं। हम उन कल्टीवार्स की प्रोपेगेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उस विषय पे काम कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हम काफी सारा काम कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम ये प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगला जो गैप हमारा है, दूसरा, ये इवन हार्वेस्टिंग का टाइम, सीजनैलिटी, उसके साथ में क्वालिटी कंट्रोल, रॉ मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल का बहुत बड़ा इशू है। इसमें जो हमारे केमिस्ट्री के लोग हैं, वो लैब्स एस्टैब्लिश करके रॉ मटेरियल की ऑथेंटिसिटी के लिए काम कर सकते हैं। और इसके साथ में ये आम जनता के लिए जो लाइवलीहुड एश्योर करने का काम है,
जैसे हमारी कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं ब्लॉक्स के साथ में, मनरेगा है या दूसरी हैं, वहां पर हम जाकर के ये काम उनके साथ हमारे यूथ जो है इंटरमीडिएटरी का काम करके इसको कर सकते हैं। अब सेकंड पोर्शन जो मैं बताना चाहता हूं वो है पोस्ट हार्वेस्ट के चैलेंजेस। तो यहाँ पे सर मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। वाइल्ड कलेक्शन का अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पे वो प्रोसेस होगा जो क्रॉप्स या जो ये हर्ब्स या मेडिसिनल प्लांट्स उगे हैं उन्हें तोड़ के लाना और उन्हें इकट्ठा करना, राइट? जी है ना, और कल्टीवेशन उनको उगाने का प्रोसेस। जी जी जी। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि जो कलेक्शन सेंटर्स का नेटवर्क है, हम क्या इसमें कल्पना कर रहे हैं कि जो कलेक्शन है इनकी सरकार का भी प्रोसेस है कि एक जगह पे लोगों को सुविधा हो कि जो वाइल्ड कलेक्शन होती है उनके कलेक्शन सेंटर बन के उसको रीजनल मंडी में, जैसे हमारा सेंटर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मंडी के बारे में भी सोच रहा है कि हमें रीजनल मंडियां भी बनानी है, उस विषय में भी काम चल रहा है, ताकि ये जितनी भी कल्टीवेशन वाली जो कमोडिटी है या जो थोड़ा बहुत जो वाइल्ड में या लोग अपनी निजी जमीन में से जो हार्वेस्ट करते हैं उसको मंडियों के माध्यम से उसको ट्रेड को, क्योंकि दिस इज ऑल अनऑर्गेनाइज्ड, ये सारे का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एफर्ट्स जो है वो आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में पोस्ट अगली बात जो है वो मैंने आपको जैसे बताई कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं सॉर्टिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारे का सारा भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे टेक्नोक्रेट्स के लिए कि जो फार्मर का प्रोड्यूस है उसको वैल्यूडेशन एट द सोर्स कैसे किया जाए। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे अगर हाईटेक वैल्यूडेशन कर पाएंगे तो हमारा जो प्रोड्यूस है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो जाएगा, वो हम आराम से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसपे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें एक्सपोर्ट के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब हमारे प्रोड्यूस का रॉ मटेरियल का जो स्टैंडर्ड है उसकी ड्राइंग स्टोरेज में कोई कंटेमिनेशन ना हो, किसी तरह से एफ्लाटॉक्सिन्स ना हो, कोई मेटल कंटेंट ना हो, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो। ये सारी की सारी चीजें हमारे जो विज्ञान के लोग हैं, साइंस के लोग हैं, वो हमें इस तरह की इनपुट्स देकर के इस विषय को काफी अच्छे तरीके से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ला सकते हैं। जी। तो इस तरह से मैं अगर आगे बात करूं तो हमारा इवन हम लोग ट्रेड रेगुलेशन में भी है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी वगैरह पे भी काम कर रहे हैं, वैल्यूडेशन पे हमारे यहाँ काम होता है। हम देखिए आंवला जो है, आंवले की बहुत मांग है, लेकिन आंवले को एज सच मार्केट करना 2 रुपए से लेके 10-12 रुपए किलो की आइटम है, लेकिन कोई इसको अगर फ्रीज ड्राइंग करता है, इसको सुखा के बेचता है, यही आंवला 150 रुपए किलो हो जाता है। अगर वो त्रिफला चूर्ण बना देता है तो वो 500 रुपए किलो की आइटम हो जाता है। सो वैल्यूडेशन इज द की फॉर ऑल मेडिसिनल प्लांट्स। इसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं कि हम अलग से 2 घंटे घंटा इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी कमोडिटीज, छोटे छोटे जो हमारे प्रोड्यूस हैं जिनकी हम जीरो वैल्यू समझते हैं, वो बहुत बड़ा आय का साधन हो सकता है। इसी तरह से जैसे मैंने ये फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स का जिक्र कर लिया, ये सब चीजों की बात हमने कर ली, काफी सारी इसमें संभावनाएं हैं। मार्केटिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उन पे भी खूब सारे स्तर पे किसानों की सबकी मदद हो रही है। और दूसरा, इसको हमने स्किल के साथ भी जोड़ा है। जैसे हमारा मान लीजिए वाइल्ड कलेक्शन पे अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो एक कंप्लीट हमने उसके लिए स्किल के साथ कोर्स बना दिया है। वो कोर्स करके एक शिक्षित आदमी 200-300 घंटे के कोर्स के साथ में पूरा वाइल्ड कलेक्शन की निटिग्रिटीज को सीख सकता है। पूरी सप्लाई चेन समझना चाहता है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। केवल कल्टीवेशन में जाना चाहता है वो कर सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट में जाना चाहता है, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसी तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वैल्यूडेशन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारी सारी की सारी इस सेक्टर की संभावनाओं को खोलता है। और मतलब आपने जो ये कोर्स बनाया है, मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर आप इस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो जो लोग इसमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले वो ट्रेनिंग ले लें, पूरे प्रोसेस सिस्टम को समझ लें, एंड आफ्टर दैट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। एग्जैक्टली।
और वैसे भी इट्स नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप एक एक कंपोनेंट को आइसोलेशन में समझने की कोशिश करेंगे तो हम्म। इसमें इसमें देर आर नो कॉम्प्लिकेशंस। बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कुछ साल पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट वाले स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ ज्यादातर बच्चे जो थे वो पहाड़ों से आए हुए थे। सो दे कुड अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, माई लेक्चर वेरी वेरी सिंपली। उनको अच्छे से समझ आ गया कि ये जो है वो उनसे रिलेटेड बात है, और वो इस सप्लाई चेन के कंपोनेंट में आराम से वो मतलब कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई हम्म। समस्या नहीं। जी जी जी। तो इसमें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा है, तो आपकी तरफ से या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिल सकती है उन्हें? नहीं, मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से भी कोई समस्या नहीं है। कोई करना चाहता है तो वो संपर्क हमें कर सकते हैं। विभागीय हम्म। तौर पे भी हमारे यहाँ अलग अलग मीटिंग्स, स्टेक होल्डर मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, उनमें भी हम उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो संभव हैं। ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। और लेकिन दूसरा क्या है, हमारे यहाँ एक सीएम स्टार्टअप स्कीम के तहत स्टार्टअप सेंटर भी चलता है, इंक्यूबेशन सेंटर भी चलता अच्छा, है। इंक्यूबेशन इसका होता है? इंक्यूबेशन भी होता है। कोई भी व्यक्ति इंक्यूबेशन पे जाके भी अपना आइडिया दे सकता है, और उसके साथ साथ फिर वो आगे इसको अडॉप्ट कर सकता है। संभावनाओं के लिए क्योंकि आदमी अपनी पृष्ठभूमि और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इनको चुन सकता है। और मेरे हिसाब से मैं तो समझता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि आईटी युग हैज गॉन, आईटी का युग समाप्त हो गया, अब युग आयुर्वेद का है। 2014 के बाद देखिए कोविड आ गया, कोविड के बाद हर जगह आयुर्वेद आ गया, और हम इसमें जो डिमांड देख रहे हैं यूएस से, यूरोप से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, इतना जबरदस्त डिमांड है। ये जो मैंने ट्रेसेबिलिटी का जिक्र किया, जो मैंने आपसे बात किया कि लोग सर्टिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी के साथ में प्रोड्यूस चाहते हैं, और मैं आपको सच बताता हूं कि हमारे पास प्रोड्यूस नहीं है। इतना अच्छा निश एरिया होने के कारण हमारे पास प्रोड्यूस की कमी है, हमारे पास प्रोड्यूस नहीं है। और मैं तो कहता हूँ यूथ के लिए, अब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर के जमीन लेना चाहती हैं, खेती करना चाहती हैं, खुद उसके प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन करके उसको बिजनेस करना चाहती हैं। हमारे पास तो पहले से ही लगभग 150 के करीब तो कंपनीज बैठी हुई हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। किसी युवा को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाकर के भी अपनी फॉर्मुलेशंस बना के अपने रॉ मटेरियल से वो अच्छा ट्रेड कर सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है फार्मिंग कम्युनिटी, जिसकी हमें चिंता रहती है हमेशा कि वो फार्मिंग कम्युनिटी को उसके प्रोड्यूस का बिल्कुल सही प्राइस मिल सके। बिल्कुल। तो एक और इसमें क्वेरी है कि अगर अगर जिस प्रकार कुछ नेचुरली ग्रोन प्लांट्स हैं जो जंगलों में होते हैं, जैसे आपने बताया, अब उन प्लांट्स को अगर कोई कल्टीवेट करना चाहे अपने अपनी जमीन पे, तो वो पॉसिबल है क्या? वही मैंने आपको बताया कि 55 के करीब स्पीशीज हमारे आरटीई की कैटेगरी में आ चुके हैं। जी। और वही जो स्पीशीज हैं, थ्रस्ट तो यही है, क्योंकि एक तो उनका एक्सपोर्ट बैंड है, साइटीज की लिस्ट में शामिल है वो। जैसे कुट है, कुटकी है। अब ये जंगल के पौधे हैं, लेकिन खेती में लाने के लिए यही तो हमारे सेंटर का सबसे बड़ा काम है। इस बार लगभग हमने 10 लाख प्लांट्स जो हैं वो कुटकी, जो लिवर के टॉनिक के तौर पे यूज होता है, इस बार किसानों को उपलब्ध कराए। किसानों ने अपने खेतों में लगाना शुरू किया। दिक्कत सिर्फ एक ही है कि जितने हिमालयन पौधे हैं ज्यादातर, इनका गेस्टेशन पीरियड 2 से 3 साल का है। किसान के पास धैर्य नहीं है, लेकिन सरकार की योजनाएं हैं कि सरकार उनको रोटेशन में इनकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसके लिए योग्य जो प्लांटिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो जो जंगल में हो रहे हैं पौधे, वो जंगल से प्रेशर कम हो, लोग उनको खेतों पे करें, खेती करें, और वो अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग करें, और उसके साथ साथ वो उद्योग की डिमांड को भी पूरा करें। तो आप इसे एक बहुत बड़ी आने वाली इंडस्ट्री के रूप में देख सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट सेक्टर को। मैंने कहा जी, अगला दशक तो आयुर्वेद का है, बिल्कुल। और आयुर्वेद के हर कंपोनेंट का है। और स्वास्थ्य की सबसे बात अच्छी करें, बात यही है कि अगर किसी भी आने वाले किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है और वो फ्यूचर में ग्रो करेगा, अभी से शुरुआत की जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, और अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। और आप कुछ अगर, क्योंकि आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बड़ा आपका करियर रहा है, आपने शुरुआत किया, अपनी एक एनजीओ फॉर्म की थी, वहां से आपने शुरुआत की थी, तो आपने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को भी
हेल्प किया है, यूथ को आपने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है। तो आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या इवन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स हैं, वो अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उन्हें पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और उनके लिए क्या आपको लगता है कि क्या सही तरीका रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मैं तो कहता हूँ सर, सबसे पहले तो आशीष जी दिल की आवाज सुने। जो जी। दिल कहता है वो करें, लेकिन दिल मतलब कहने का मेरा यही अभिप्राय है कि हमारे आसपास के जो संसाधन हैं उनके आधार पे ही हमें उद्यमिता करनी चाहिए। और अभी इतनी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि, और योजनाएं इतनी हैं। अब मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, कोई उद्योग विभाग की योजना, एमएसएमई की योजना, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की योजनाएं, यानी किसी किसी योजना में तो 70 से 80% तक का अनुदान उपलब्ध है। तो ये जो बायो रिसोर्स, हर्बल मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट सेक्टर, इनकी खेती और दूसरे जो कार्य हैं, ये सरकार के प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। इनमें बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि नौकरी का लालच छोड़ के, यानी प्रदेश से बाहर जाने में कुछ नहीं रखा है, और अब इतनी डाइवर्स कैटेगरीज इसके अंदर आ गई हैं, इतनी संभावनाओं का बड़ा क्षेत्र आ गया है कि मैं सबसे कहूंगा कि उनको कूदना चाहिए इस आंदोलन के अंदर। आपने बहुत ही अच्छा एक नया, इट वाज एन आई ओपनिंग सेशन, सबके लिए एक नई चीज थी। बहुत अच्छा कुछ समझ में आया कि यहाँ पे इस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है ये अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जी बिल्कुल। जो कोई भी यहाँ पे शुरुआत करेगा एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस बिजनेस टॉक शो के लिए दिया। रियली सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप आगे भी अपना कुछ इनपुट दें, और अगर इस वीडियो से मोटिवेट होकर के लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपकी परमिशन है उन्हें आपसे कांटेक्ट करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से करें। हमारे ईमेल आईडी आप शेयर कर दें, फोन नंबर शेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, और हम तो नए आइडियाज के भूखे हैं, और हम उनको मेंटर करना चाहते हैं, हम उनको इनकरेज करना चाहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू सर।